हाय गाइस, आई एम सुनील मलिक फ्रॉम मूवी टॉकीज और आज हम यहाँ पर फन रिपब्लिक में पहुँच चुके हैं जहाँ पर कुछ ही देर में मूवी जुनूनियत का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। मूवी को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने और इसमें स्टार हैं यामी गौतम और पुलकित सम्राट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू। Very gorgeous Yami Gautam, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. The handsome hunk, the dude himself, Pulkit Samrat, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए भी. Sir, everybody is in a trance, you know. They're like, यार इतनी अच्छी love story आधी इन्होंने दिखा दी, पूरा ही खत्म करो सर आज दिखा दी. Everybody just loved it. And यहाँ पे सबसे पहले, why जुनूनियत and why this cast, Vivek? जुनूनियत इसलिए कि जुनूनियत के बगैर ज़िंदगी नहीं है। अच्छा। और ये कास्ट इसलिए क्योंकि इस कास्ट के बगैर ये फिल्म जुनूनियत नहीं है। राइट एंड कहते हैं इश्क आग का दरिया है डूब के जाना है, तो इतना इश्क दिखाने के लिए तो सर बिल्कुल डूब क्या पता नहीं कितनी स्विमिंग की होगी आपने। ये इनसे पूछिए, ये बताएंगे जी कितनी कितनी स्विमिंग करनी पड़ी यामी पुलकित। You can see right in the opening shot, I'm all in the lake. It was a dirty Virat डूब गई lake. थी। But बचाने के लिए पुलकित आए वहां पे। no, but I think jokes apart. Thank you, Vivek, sir, I think for this opportunity. I think every actor wants to do a love story, and I think with Courtesy T series, I've got to do 2 back to back. And thank you, Pulkit, for being able to bear me, if you did. So, and this is of course, and I think I'm sure आप सबके ज़हन में ये होगा, and I've been, you know, that's the first thing. अच्छा, Sanam Re now just suddenly Junooniyat, and is it Sanam Re 2? Not at all. It is not Sanam Re 2 at all. And आप देख सकते हैं that it's entirely different. It's a different story altogether. We have a different director altogether. It's a different character. सिर्फ जो lead cast same है, but it's entirely different. And we hope that we get to entertain you and not claiming anything. Oh, it's some, as Sir said, some experimental drama or anything. It's a love story. It has romance. It has drama, intensities, tears, but all happy and some amazing music for every occasion, every genre, which I hope, I'm sure actually that you all will love. We already got a lot of love for our trailer, and today 2 songs got launched and getting good feedback. So thank you so much. The entire, I think, you know, all the people responsible, I think, for this song, Nachange, Meet Brothers, Tulsi Kumar, Neeraj Shrita, I think they're all here. So thank you so much for making it really special. Over to you now. पुलकित इज लाइक मैं क्या बोलना है, मेरे को अभी हो गया यार, है ना। सब तो बोल दिया 1 मिलियन व्यूज जैसे इसको अपलोड किया गया था ट्रेलर नहीं, को, 2 हो अब गया 2 हो अभी, गया। हाँ। जाते ही तो एकदम 2 दिन हो गए ना अभी, 2 हो इंटरनेट तो पगला दिया था हमने। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? Firstly, hello everybody. Thank you so much for taking out time. And So we can't bore you so much. Arja, is that Arja Alok? We can't bore you so much. You can't be on your messages while we're talking. Please, sir. Please. नहीं Arja, वो Arja. वो तो लाइव ट्वीट कर रहे हैं। Great. We need your attention, हमें sir. tag कर Come देना। on, we love you. हमें टैग कर देना प्लीज, वी नीड मोर फॉलोअर्स। Alright, so what we'll do is we were talking about the music. So यहाँ पे कुछ कमाल के लोग हैं. So सबसे पहले मीत ब्रदर्स and कुमार पाजी. So मीत ब्रदर्स ये आप लोगों के लिए और पूरे क्रू के लिए है. मतलब ये गाना एक और धमाका आपने कर दिया पाजी. मतलब अमेजिंग. कौन किसको डायरेक्ट कर रहा था? मतलब इन्होंने कहा भाई मेरा एक्सपीरियंस है मीत ब्रदर्स. ये हमारे पाजी है ना, जब ये होते हैं तो सारी चीजें धमाके ही होते हैं, बिकॉज इट्स ओल्ड सॉन्ग एंड इट्स सच अ बिग हिट सॉन्ग. तो जब भी आप नए गाने को टच करते हो तो बहुत खतरा होता है. अभी हमने हाई हील्स बनाया था, थैंकफुली नाउ पीपल टेल अस दैट दे रिमेंबर द न्यू वन. सो वी होप कि ये नचांगे सारी रात को एक नई तरीके से लेके आए हैं. एंड इफ यू रियलाइज दैट एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हॉट न्यू आवाज इसमें हमने लॉन्च करी है तुलसी कुमार की. हाँ बहुत अलग तरीके से. क्योंकि ऐसे तुलसी को आपने नहीं सुना है. सो वी वुड लाइक टू से कि वी हैव लॉन्च्ड हर अगेन इन अ डिफरेंट अवतार. Yes, I totally agree with that because this is actually my first dance peppy number. Of course, इससे पहले मेरा सया सुपरस्टार आया था, but this was recorded much before that. और ये गाना सुन के मुझे वो गाना मिला. So this is a different avatar of me that everyone will get to hear. और everybody is surprised how can Tulsi sound like that. In fact, we would like to tell you that कल फोन आया हमें कि उन्होंने बोला कि यार आपने नाम तुलसी का दिया और गवाया किसी और से. तो हाँ, तो हमने कहा नहीं भाई, जाके हमारा आके सेशन चेक कर लो, उसमें तुलसी की ही आवाज़ है. एंड इस गाने का क्रेडिट एक भूषण जी को भी जाएगा, बिकॉज उनका फ़ोन आया था सबसे पहले. उन्होंने कहा कि कुमार पाजी को लेके आओ और एक गाना रिक्रिएट करना है विच इज़ हिज फेवरेट सॉन्ग.
तो डेफिनेटली थैंक्स टू भूषण जी ऑल्सो. आपने कमाल कर दिया सब लोगों ने, और यामी एंड पुलकित मतलब ऐसा आग लगा रहे स्क्रीन पे. तो अभी जो आपने जलवा दिखाया, मैं कहूंगा एक एक स्टेप आगे आ जाएं पुलकित और यामी प्लीज. हाँ देखो वो मार्क्स बने हैं, वेरी गुड. थोड़ा थोड़ा Dazzle आगे are choreographers. एंड Dimple हो जाए थोड़ा सा. I need to- नीरज सर, तुलसी जी, मीत Sorry, ब्रदर्स sorry, I हो forgot to जाए. mention, Yes. have to thank Vijay Ganguly and Dimple, who choreographed this song. And really big thanks to them. I think we had a lot of, couple of challenges जो हर shoot में होता है, but I think they did a really good job, sir. Yes, sir. I thought they would be here. Thought the same. But big thanks to them. Would have been- As you can see, our chemistry totally, we've been so much sync. So Yes, we always I don't know why you keep talking about our chemistry. You just saw it. थैंक यू सो मच मीत ब्रोस, अंजन, कुमार पाजी, थैंक यू सो मच. तुलसी, नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. एंड हमारे साथ यहाँ पे अरमान भी हैं, सो आई विल इनवाइट हिम ऑन स्टेज. बट बिफोर दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, पुलकित, जो अभी हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, एज यामी सेड, तो केमिस्ट्री की अगर बात करें, हमने देखी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, फिल्म के सेट्स पे कैसे होती है यामी? इज इट लाइक रियली डिफिकल्ट टू हैंडल और समथिंग? जैसे अभी बोल रही थी, ये बोलती रहती है और मैं चुप रहता हूँ. अच्छा, पूरे टाइम ऐसे ही होता है? पूरा टाइम ऐसे ही होता है. मैं तो शांत रहता हूँ, आप सर से पूछ लीजिए. हमें सर के Why पास did ही you आता ask, sir? Sir, सर, व्हाट इज दिस सर? नहीं, एक्चुअली हम लोग बातचीत किए बगैर ही फिल्म बन गई. हम लोग बात नहीं करते हैं, ये भी नहीं बोलती हैं, ये भी नहीं बोलते, मैं भी नहीं बोलता हूँ, हम तीनों नहीं बोलते. मैं सिर्फ तभी बोलता हूँ जब कोई नहीं होता है. तो ये फिल्म बिना बातचीत के बन गई. और इश्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिना बातचीत के जब इश्क हो, उसका मजा जाता है. हाय हाय सर, ऐसा वाह. दिल पे लगी है. साइलेंट लवर सर. है ना? और यू नो, जुनूनियत इज एक्चुअली नो वर्ड. ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये कॉइन किया गया है. ये शब्द नहीं है सर? नहीं है, प्यार भी कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली. कहाँ है, दिखाओ. ऐसे सवाल पूछ रहे हैं सर, प्यार दिखाओ, कहाँ से दिखाऊं? मेरी जिंदगी में होता है, होता है. मैं, हाँ सर, क्या सवाल क्या था? मैं सवाल यही था कि जुनूनियत जो फिल्म है, एक्चुअली 1.5-2 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा हेट स्टोरी बनाने के बाद, और हमें पता नहीं था कि हेट स्टोरी भी चल सकती है, और जब चल गई तो सबने कहा हेट स्टोरी 2 बनाओ, 3 बनाओ. तो मैंने कहा नहीं, अब डिटॉक्स करने का वक्त है. और मैं डिटॉक्स करने के लिए गोवा गया हुआ था. तभी मुझे आई मेट अ वंडरफुल लेडी, इनफैक्ट शी इज़ हियर विद अस, प्रीति. आई वुड वांट प्रीति टू कम ऑन द स्टेज, क्योंकि इस फिल्म का जो जर्म है वो यहाँ से निकला हुआ है. ये शी गॉट मी अ थीसिस ऑन लव, you know, a big thesis on love. Right. And I then started, I always thought never in my life I will make a love story. मैं, आप देखें, मैं different genres में काम करता हूँ. I don't repeat my genre. I thought I'll never make a film on love story. But this is important to tell you since you are here. And when I started researching, आपको पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि the maximum research on Google is on sex. It's not true. The maximum number of searches are on love. सर मुझे तो पता था. आपको पता था? मुझे तो पता था. मैंने तो कभी सेक्स सर्च भी नहीं किया सर. ये तो आप भाई, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती, बिना सर्च के मिल जाता. हमें करना पड़ता है, हमें बहुत सर्च करना पड़ता है. But anyway, and then second thing I read by a great management guru. This guy has been researching for last 40 years. And whenever somebody dies, he goes there and he works in MIT. He goes there and he sits and spends a lot of time with those people if somebody informs him. और जो चीज़, this is very strange, and he found that nobody in this world on his deathbed ever said कि काश मैंने और पैसे कमा लिए होते, काश मैंने और काम कर लिया होता, काश मैंने और फैक्ट्रीज खोल ली होती, काश मैंने और फिल्म्स कर ली होती, या काश मेरी और हिट हो गई होती. यू नो व्हाट एवरीबडी सेज? काश मैंने लोगों से और प्यार किया होता. अगर यही जीवन का सत्य, देन आई सेड ओके प्रीति, मेरी बहुत झगड़ा, प्रिया ने, मैं अपनी बीवी से इतना नहीं झगड़ा जितना मैं प्रीति से लड़ाई की. मैंने कहा व्हाट शिट यू आर गिविंग मी, आई डोंट वांट टू मेक दिस. बट देन व्हेन आई टुक दिस ऑन, आई सेड लव स्टोरीज देखिए चेंज नहीं होती हैं, सबकी, इंसान की जिंदगी की लव स्टोरी वही रहती है.
और दुनिया का सबसे क्लीशे अगर कोई सेंटेंस है तो वह है आई लव यू। और पहले दिन से यानी जब इंसान बना होगा शायद तब से लेकर अभी तक, देयर इज द ओनली वे वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज, आई लव यू। तो मेरे ख्याल से लव जो है, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है जो आदमी को इतना ड्राइव करती है। एंड देन वी डिड, मैं फिर उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ एंड आई ट्राई टू थिंक लाइक अ यंग, मैं चूंकि छोटे शहर का एक मिडिल क्लास आदमी हूँ तो मैंने उस माइंडसेट से देखने की कोशिश की। हाँ, पर अब आप बहुत बड़ी वो हैं तो पर मैंने उस नज़र से देखा। सो दिस फिल्म बेसिकली इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय एंड गर्ल who either have just fallen in love or who are about to fall in love or who have just broken up in love. तो मैं इसकी टारगेट ऑडियंस बड़े अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है, उसी हिसाब से डायलॉग्स हैं, म्यूजिक हैं। एंड आई थिंक फॉर द वी वांटेड, भूषण एंड आई डिसाइडेड दैट वन थिंग वी विल डू, लव स्टोरी की जो रूह होती है उसके डायलॉग्स और म्यूजिक में होती है। और मैंने इमेजिन किया, मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता हूँ पर मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिंसियरली मैंने कहा अगर यश जी दाग के वक्त में कैसा सोचते होंगे उस तरह से अगर मैं सोच के देखूं तो क्या होगा। सो वी अटेम्प्टेड दैट। ये बड़ी समाज से, जीवन से, परिवारों से जुड़ी हुई कहानी है। इसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अनरियल, पर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके दिल को छूती है। सेकंड थिंग इज, किसी भी फिल्म की जो है कास्टिंग 50% बैटल होती है। और मैंने एक फिल्म देखी थी फुकरे, एंड आई सॉ, जब भूषण हमारी बात हुई आई सेड कि दिस इज द बॉय, दिस फिल्म हैज़ टू बी डन। क्योंकि आर्मी सोल्जर्स बहुत बनते हैं हमारे यहाँ पर, नॉर्मली सोल्जर्स ऐसे बनते हैं एक सीन में एक शर्ट पहन ली और उसके बाद काम खत्म, फिर कुछ और हो गए। पर हियर ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सोल्जर थ्रू आउट द फिल्म। एंड मेरे दिमाग में वो राजेश खन्ना की आराधना की इमेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी व्हेन ही कम्स बैक अगेन फरीदा जलाल वाले ट्रैक में। सो आई सेड हु कैन बी दैट बॉय, एंड देन दैट्स हाउ आई फाउंड पुलकित। फर्स्ट टाइम वी मेट एंड वी क्लिक्ड, इट स्टार्टेड। अब सवाल था कि एक ऐसी भंगड़े दी क्वीन जैसी लड़की कहाँ से लाएं, खालसा कॉलेज अमृतसर वाली, जो कि सिर्फ वही नहीं हो, संस्कारी भी हो, मॉडर्न सिनेमा में थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, थोड़ी अर्बन भी हो, थोड़ी रूरल भी हो। तो मैं अपने ऑल्टर ईगो को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते यामी गौतम मिल गई। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी गॉर्जियस गर्ल, ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। एंड ये भी टाइम को लेके काफ़ी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है। इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप इनको एक एब्सोल्युटली न्यू केमिस्ट्री, न्यू कपल, वेरी ब्यूटीफुली जॉब डन, ग्रेट म्यूजिक बाय एवरीबडी। एंड आई थिंक लव स्टोरी में इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। लव स्टोरी की रूह मैंने बताया, डायलॉग्स, अगर इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको फिर से वही पुराने बहुत खूबसूरत डायलॉग आएंगे। इसमें बड़ी शेरो शायरी भी है, और सिर्फ कुमारी शायर नहीं है, मैं भी थोड़ी शायरी कर लेता हूँ। पाजी ने लिख लिया शुरू में ही, उन्होंने कहा एक टाइटल सॉन्ग में अभी अलग बनाने वाला हूँ। इनके साथ कोई भी इतना टाइम बिताएगा शायर आधा हो ही जाएगा, है ना। अभी प्रीति, दिस वंस फॉर यू, अमेजिंग स्क्रीन प्ले और बहुत बहुत काम किया गया इसके पीछे। जैसे उन्होंने बोला झगड़ा होता था, वाइफ से जितना नहीं होता उतना आपसे होता था। Absolutely. तो क्या, कैसे निपटते थे उस सब से? Experience. I've been married for 24 years, so. सीधे पति पत्नी पे ठीकरा फोड़ दो सीधे, हैं? अच्छा यामी, दिस वंस फॉर यू, एंड बिफोर यू नो, अब यहाँ पे एक और गाना है, अभी आप सबको उसको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। यामी, दिस वंस फॉर यू, टेल मी, लक्ष्य में कौन सा गाना? अभी सरप्राइज है। लक्ष्य में हमने ऋतिक रोशन को देखा था, एक कड़क आर्मी ऑफिसर, और तब से लेके अब तक बड़ी तारीफें होती हैं, और यहाँ पे इनको देख रहे हैं, कौन ज्यादा कमाल का लग रहा है, ऋतिक की पुलकित? Right now she's working with Hrithik, so I think दोनों Hrithik. बहुत काबिल हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, दोनों ही अपनी जगह बहुत काबिल। ऐसे कर। That was very different. Of course, Hrithik is one of, I think, the most. It's undoubtedly, without any debate, I'm sure we'll all agree, he's one of the best actors we have. He's a really perfectionist to work with. But वो बिल्कुल एक अलग कहानी थी, and this is primarily it's a love story, I think on core, and ये बिल्कुल I think no one could have, I think, justified playing Jahan better than उनका Pulkit. देश का प्यार था, मेरा भेष का प्यार है। भेस का, जी हाँ, सिर्फ हमारे चैनल पे, a lot of you can tag that, हमारे चैनल पे पता लगा है। And now ladies and gentlemen, जो सरप्राइज था, एक और सरप्राइज, एक गाना हमने देख लिया और उसको महसूस कर लिया। Now may I invite on stage the one and only, the superb music director जीत गांगुली दादा, and of course the birthday boy हैं वो आज के हमारे, उनका जन्मदिन है भाई। जी दादा, रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए, हैप्पी बर्थडे। यार बर्थडे है, कुछ ऐसा थोड़ा दुखी थोड़ी बता दिया मैंने। हाँ एग्जैक्टली, मीट ब्रो संजन। Happy birthday to you. Everybody, Thank you so much. Birthday to Jeeta. Happy birthday to you. कंपोजर होने के साथ साथ thank you. ही इज जस्ट अमेजिंग, ही इज एन अमेजिंग सिंगर। तो अभी उनकी आदत गई नहीं, उन्होंने कहा सब गा रहे, मैं भी हाँ हैप्पी बर्थडे। अच्छा फिर याद आया, अच्छा मेरा ही बर्थडे। दादा आप जियो हजारों साल,
साल के दिन हो 50,000 एंड नाउ हो जाए ये गाना, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को. Actually, this is the second song that I've sung for Pulkit. So the first one was "Hua Hai Aaj Pehli Baar" from Sanam Re. Right. And this is the second song, and I'm really excited for this क्योंकि ये मेरा पहला गाना है with Jeet Da. I've never sung for Jeet Da before, and this is the first song with Jeet Da, and for Vivek sir as well for the first time. So it's a lot of firsts together. दादा कैसे इतना प्यार बर्थडे के दिन? ये सबसे बड़ी प्यार है एक्चुअली. देखो सब लोग हाजिर है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बर्थडे गिफ्ट आज ही मिला हमको. एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much, Dada. Thank you, Arman. That was superb. Yeah, thank you. Thanks I'd a like lot. to add something. Yeah, please, here. Preeti. Okay, today feels like the graduation ceremony of a child I had years back, which then Vivek adopted and raised. So I'm really grateful for for this opportunity, and everybody who helped nurture this dream, Mr. Kishan Kumar, Mr. Bhushan Kumar, and the two of you who brought the characters to life. So thank you so Thank much. you. This is my first. It will always be special. Vivek sir, Dimple and Vijay, they're here. Can we call them also? Yeah, they're the Come, choreographers. please come. They're the choreographers. Let me introduce Got a extremely talented choreographers. This is their first film, and I Not met the last Vijay one just for by sure. chance for 5 minutes, and I said, "You have to choreograph for me," and he came and he has done a great job, both of them. So we have 3 Ganglis here now. आपकी तो फर्स्ट फिल्म है, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ कैसे फिल्म बनाई जाती है. We are all learners. Every film is a debut film. Right, right. Dada, you wanted to say something about the song, please? Yeah, definitely. First of all, grateful to the big bro of our industry, music industry, Bhushan ji, and Priya, of course, and the captain of the ship. बहुत मजा है आपके साथ काम करने में, और इतने समझ है लिरिक्स का, मेलोडी का, wonderful. A big round of applause for him. Whoa. Vivek ji, thank you so much. Thank you everybody. Pulkit, Yami, excellent performance. And our new choreographers. एक बार जोरदार ताली है इन लोगों के लिए. And एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि I'm fortunate. We have today a singer like Arman. Arman and Amal, Thank you so much. they are very close to my heart. And definitely, डब्बू भाई हमारे genius music composer. और आज मेरा first गाना है अरमान के साथ. इतना सुर में गाते हैं, आपने देखा लाइव परफॉर्मेंस किया, और कोई ऑटो ट्यूनर नहीं है ना, विदाउट एनी पिच करेक्शंस. गॉड ब्लेस यू अरमान. Thank you so much, Dada. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Arman. Thank you, sir, ma'am. आप लोग ने कमाल की कोरियोग्राफी की है. And thank you, Jeet Dada. God bless. Thank you so much. Thank you so much. Happy birthday Thank you. once again. Thank Yeah. you so much. Thank you. Thank you. And now, ladies and gentlemen, it's over to the media. आप लोग के मन में जो भी शक सवाल है वो सब you can shoot now. Thank you so much, Dada. हेलो. मेरा सवाल है कि किस चीज़ का आप दोनों को जुनून है असल ज़िंदगी में? इन जनरल आपको मतलब उस जुनून के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं? Movies. सर फिल्मों के अलावा, क्योंकि असल ज़िंदगी अरे कमाल है, मतलब ये तो सबसे इजी आंसर सबसे easy. नहीं, of course, movies, and I'm very fond of music as well. I hope I get to learn a musical instrument as well. मेरे घर में पियानो भी पड़ा हुआ है, और उस पे मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बजाना आता, तो सिखा देना यार प्लीज. So yeah, I since my childhood I used to do singing and dancing and all that stuff. So I think anything to do with not studies I'm very fond of. यामी आप कुछ ऐड करना चाहिए? I think जुनूनियत, I think as sir said, प्यार के लिए, पर वो प्यार ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक रोमांस के पर्सपेक्टिव से. that is for family for me, that is for my work. और मेरे लिए ये ही दोनों आई थिंक चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट, तो हाँ जुनून है अपने प्यार के लिए, अपने जिनको मैं प्यार करती हूँ, which is my family and my work which I worship. विवेक, मेरी आपसे उन दिनों बात हुई थी जब आप शूटिंग कर रहे थे फिल्म की. उन दिनों आई थिंक बाढ़ वगैरह का भी मामला था. वो दिन जब आज याद आता है तो क्या फीलिंग्स आती हैं? जरा शूट वाइज अगर आप बताएं. एक तो यार फिल्म बनाते हैं तो एक समझ में नहीं आता है. आज समझ में आ रहा है कि आई वॉज वर्किंग विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल, यू नो. तब तो हम लोग फिल्म बनाते रहते हैं. सडनली आई एम सीइंग ऑल ऑफ देम आर सिटिंग हियर. आई एम वेरी लकी टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल एंड सुपर टैलेंटेड पुलकित ऑफ.
नहीं, उस वक्त हम जब कर रहे थे बड़ी बाढ़ आई थी कश्मीर में, आप जानते हैं, और कश्मीर में शूट करना आसान बात भी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली एक रात का आपको किस्सा बताता हूँ। हम लोग शूटिंग करके आ रहे थे, पुलकित तब नहीं आए थे, यामी का कोई सीन था और बहुत दूर सोनमर्ग वोनमर्ग था, 2-3 घंटे का ड्राइव था। जब मैं लौट के हम आ रहे थे, उसमें काफ़ी सारी कश्मीरी लड़कियाँ काम कर रही थी, 25-30। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो सडनली रात को हमारी सारी गाड़ियाँ रोक दी एक गाँव में, एंड वो टॉर्च लेके सब डंडे डंडे लेके खड़े हुए थे। बाद में पता चला कि कश्मीरी जो लोग हैं उन लोगों को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं है, तो अगर वो लड़की मिल जाती तो हम सबको पकड़ के बहुत मारा पीटी हुई होती। तब बॉम्ब भी, मिस्टर मोदी वॉज विजिटिंग कश्मीर, तो काफ़ी बॉम्ब फट रहे थे। और ये भी एक सवाल उठा था 2-3 बार कि हम आगे जाएं कि नहीं जाएं। प्रोडक्शन वाले एज़ यूजुअल कहते हैं कि सर रिस्क मत लो, लेकिन मैं थोड़ा जांबाज टाइप का डायरेक्टर हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ, तो हमने वो रिस्क ली। एंड थैंक्स यामी फॉर, इतनी ठंड में हिंदुस्तानी हीरोइनों को तो उनके लिए खास तौर पे तालियां बजानी चाहिए। ईश्वर जाने कैसे इतनी बर्फ़ में कम कपड़े पहन के शूटिंग कर लेती हैं। इतनी ठंड थी, मतलब यानी आंखों से खून बहता था, बट शी डिड इट। आई डोंट नो, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। That's really big thanks to you. I think always a director, because I'm not saying because Vivek sir said it and standing here, but for any actor, I think एक comfort level जो एक होता है director के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and then we can overcome anything, any bad, any hurricane, any tornado, if your director is understanding and gives you that comfort and warmth. I'm sure you'll agree with me. कश्मीर So, इज वन ऑफ द मोस्ट thank you. डिफिकल्ट प्लेसेस टू शूट। जिसने कश्मीर में शूट कर लिया उसने गंगा नहा ली। Sir, here. Hi, I'm Bhavya from Book My Show. We are. Yeah. Hello. Hi. Hello, hi. Are First you of all, gonna send congratulations mails to of the reviews entire. as well? Sorry. Are you gonna send mails of reviews as well? Of course, of course. Please. There's one more film releasing with us. I think उनका भेज देना. Definitely, definitely. So first of all, congratulations to the entire team for the you. amazing product that Thank we you. see on the screen. Thank you. Sir, my question to you, the director, is that the movie is called Junooniyat, and we saw movie, like a similar movie about the whole madness and passion of love. It was called Fitoor, which released in the starting of the year. So is there any inspiration that we see that got drawn, or is it like completely different? I mean, मैं समझा नहीं, क्या इंस्पिरेशन फितूर से मिला है कि? हाँ, because Fitoor being again about the madness and craze and passion of हाँ, love. एक्चुअली ऐसा हुआ जब हम आधी फिल्म शूट कर चुके थे, तब फितूर की शूटिंग कश्मीर में शुरू हुई। हमारे सामने ही, हम जब शूट कर रहे थे पहलगांव में, तो मैं सुबह सुबह उठा, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ। मैं उनके सेट पे गया, 2-3 घंटे में बैठा, कहने लगा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। और मैं जब बहुत इंस्पायर हो गया उनकी फ़िल्म के साथ, तब मैंने कहा अब आपकी फ़िल्म आपको मुबारक है, आपका इंस्पिरेशन तो मैंने ले लिया है, अब आप जाएँ कहीं भी, हम तो जाके हिट बनेंगे। तो इस तरह की ये कहानी है। No, yeah, there's been no inspiration. Just Okay. Another question to I'm you sorry, guys. but I mean, It's all right. what can I say? I know, sir, you're from the advertising world, so that kind of an answer was kind of expected. Thank you. A question to both of y'all. You look amazing, and I'm sure everybody out here agrees Thank with you. me. Thank So, you. Sweet of you. about the things that we keep hearing about this amazing Jodi, how true are those rumors? Rumors that we look great on screen. Those are not rumors. You know what I mean, Yeah, right? इनको देखने दो यार, The एक fact second. यार that- अब बहुत हो गया, थक गए हैं, ऑडियंस भी थक गए हैं, बोर हो गए हैं, हम लोग भी हो गए We हैं। want to know the real thing. Like, what is it? अभी तो हाँ हम भी बोर हो गए हैं यार. सच में, there is, I don't know, it's very simple. I think we're here for work. Right. I think I take it as a compliment. He's always मैं said. तो यामी से ही पक गया हूँ. इतने सवाल हो चुके हैं. तुम प्लीज दूर खड़ी हो मुझसे. Done, yeah. I think we just Please. want to, I think, be known for our work. For I think ऐसे सर ने कहा बहुत मेहनत से पिक्चर बनती है. But I और, fell in love with you. She became my muse for the film. So और मेरे ख्याल से किसी भी क्रिएटिविटी की जो सबसे खूबसूरत मंजिल हो सकती है वो ये हो सकती है जब क्रिएटर और उसके साथ जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इश्क हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप नहीं चाहेंगी कि आप लिखते लिखते अपनी जर्नलिज्म के साथ आपको इश्क हो जाए? तो मेरे ख्याल से वो बहुत another अच्छी बात है। advertisement answer for you. Thank you. हाय, मेरा सवाल है विवेक आपसे कि ये फिल्म सनम रे से पहले बन चुकी थी और ये बाद में रिलीज हो रही है सनम रे पहले, इसकी कुछ खास वजह? क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद रिलीज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी वजह नहीं। They just tossed. It was in house. TC. They just tossed a coin. Sanam Ray won the toss. नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा था हमारा एक सेक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें सिर्फ बर्फ में ही शूट करना था और फिल्म शूट करते करते हमने ख़त्म किया तो तब तक मई और जून आ चुका था और उसके बाद देन आई हैड टू गो बैक इन दिसंबर जनवरी और वो भी हमें पक्का पता नहीं था कैसे जाएंगे क्या करेंगे बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम। और हमारी फिल्म में VFX काफ़ी हैं, आपने देखा होगा लेक और ये और दुनिया भर की चीज़ें। तो वी वर लिटिल अनसर्टेन अबाउट कि क्या होगा एंड आई थिंक दैट्स व्हेन द कंपनी मस्ट हैव डिसाइडेड that they should release a film which was also ready.
तो and also I got very busy with my another film which released last week. मेरा सवाल है विवेक अग्निहोत्री से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। शूटिंग के दौरान आपको हाँ यस 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 शूटिंग के दौरान आपके आर्टिस्टों में किस प्रकार का जुनून देखने को मिला आपको? देखिए जुनून कई तरह के होते हैं। असली जुनून जो जिसको मैं मानता हूँ जुनून कि आपने जो देखिए बाकी सब बातें मैं ईमानदारी से बोलूँ आपको इसका जवाब दूँ ईमानदारी से कि ऐसे ही बाकी सब बातें देखिए बेकार हैं। असली चीज़ जो मैटर करती है कि आपने जो सोचा था विजुलाइज किया था जिस कैरेक्टर को वो कैसा पर्दे पे निकल के आया है। बाकी तो सब बातें ये था नहीं था ऐसा थोड़ी है कि घर में दो भाई रहते हैं और उन दोनों में बहुत राम लक्ष्मण जैसा प्यार होगा तभी वो घर में खुशी होगी। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन। व्हेन यू विल सी दिस फिल्म यू विल रियलाइज इट। मैं इसलिए आज ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग देखें और तब उनको समझ में आएगा कि हाउ सिंसियरली बोथ ऑफ देम एंड नॉट बोथ ऑफ देम दे अदर एक्टर्स रिश्ता भट्ट गुलशन देवैया दे आर ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर देर लॉट्स ऑफ एक्टर्स इन दिस फिल्म। इनफैक्ट इट्स अ बिग फैमिली बिग फैट Hindu Indian family and when you'll see the film you'll realize that everybody has given so much and under let me tell you एक तो वैसे ही हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम रहता है हिंदुस्तान में उसके बाद टू शूट इन प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड शिमला एंड चैल इट्स नॉट ईजी इट्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पानी नहीं होता है गर्म। एक्चुअली आपको बताऊँ जब हम सोनमर्ग में शूट करने गए थे दिस इज़ रियली समथिंग देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम होता है ऐसा कि लोकेशन के लिए कोई इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो जाए। तब वो एरिया बंद हो चुका था। वी वर नॉट अलाउड टू गो इन। याद है आपको यामी? तो हम लोग कुछ नहीं था तब मैंने ज़बरदस्ती कहाँ है कोई प्रोडक्शन वालियाँ होंगे वो जानते होंगे बहुत लड़ाई लड़के टू आई बिकेम अ बैड गाय बट उसके बाद लड़ाई लड़के मैं आर्मी वालों को मैनिपुलेट करके आई एम सॉरी टू से दैट सब कुछ करके मैं किसी तरह से वहाँ गया और वहाँ 1 या 2 ही होटल रुके थे जिनमें गर्म पानी भी नहीं था बिजली नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कंबल नहीं थे कुछ नहीं था सिर्फ 4 दीवारें पुलकित भी नहीं था। हाँ पुलकित भी नहीं था और उसमें जो कपड़े और जैकेट्स हम पहन के गए थे उसी में सोए और हम 2 दिन उस तरह से हमने शूट किया। इट वॉज आई डोंट नो इसी को कहते हैं जुनूनियत शायद जब आप कुछ चाहते हो और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा पहुंचे। मैं इस फिल्म के लिए सोच रहा था क्या है वो जुनूनियत शायद यही है वो जुनूनियत। ओके मेरा सवाल यमी और पुलकित से है। You know, I would just like to add one thing before we move ahead. We got a lot of support from the army. We must not forget that. It was very difficult to shoot and get permissions to shoot at the places that we shot at. And these army guys, they helped us a lot. They provided us with a lot of stuff to keep us warm. And most of the locations that you see where the army base is set up in the movie, they are all real locations. They are all actually the bases that were let out to us कि आप इसमें shoot कर लीजिए लेकिन सिर्फ इतने टाइम से इतने टाइम तक। And they were great. They made it really easy for us. Localites, I think they were extremely sweet. Yeah, even the localites. Okay, We'll take one last question. मेरा सवाल यमी और पुलकित से दोनों से जानना चाहूँगा। हर साल बहुत सारी कहाँ से? सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है उतना ही काफ़ी। नहीं सर पहले तो नाम तो स्पीकर सही को थोड़ी आवाज देंगे। हेलो कैन यू सी मी? ओके हाँ अभी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। ओके आप दोनों से मेरा सवाल है आपने सर मेरा एक तो नाम गलत लिया है। मैं यमी नहीं हूँ मैं यामी हूँ। ये यामी ये तो सीख सुनाई ओह पड़ना आई एम सो सॉरी फॉर इट। यामी और पुलकित आप only? दोनों से मेरा सवाल है हर साल बहुत लव स्टोरीज आती हैं और सबकी कहानी और थीम भी अलग होती है। ये जानना चाहूंगा पहला सवाल ये है कि कितनी अलग होगी ये लव स्टोरी जुनूनियत की हम बात करते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा आप मत दीजिए। बिल्कुल अलग नहीं है विवेक जी अलग ही नहीं है। विवेक जी लेट देम आंसर सर। मुझे मालूम बता रहा हूँ बिल्कुल अलग नहीं मुझे मालूम है आप बहुत हाजिर देखिए, जवाब हैं। हर लव स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं। let हर लव me- स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं और पुलकित पे अरमान की आवाज़ नहीं होती है और यामी इस तरह की रेड ड्रेस पहन के डांस नहीं करती है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफरेंट थिंग अबाउट दिस लव स्टोरी। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस क्या आप कभी हैव यू एवर फॉलन इन लव? क्या आप कितना रिलेट करते हैं अपने किरदारों तो से? आप लव दोनों में फॉल कर करके बदनाम हो चुका हूँ मेरे भाई। मैं इतनी बार लव में फॉल कर चुका हूँ। यामी आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ यादें ताज़ा होती हैं? क्या आप रिलेट करती हैं जो किरदार आपने ऑन स्क्रीन निभाया है? मैं रिलेट करती हूँ उसकी पंजाबियत से। सुहानी कपूर का कैरेक्टर निभा रही हूँ। शी इज़ अ लोकल अमृतसरी पंजाबी गर्ल खालसा कॉलेज अमृतसर एंड तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस बिकॉज एज सर सेड नोबडी सीन मी लाइक दैट बिफोर। और मैं पूरा रिलेट कर पाई। हम अमृतसर में भी शूट किया है। वहाँ का खाना, वहाँ की लोकल्स, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का देसीपन। आई एम वेरी देसी सो आई टोटली लव्ड इट। और मैं इस पर्सपेक्टिव से इस कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ। प्यार से रिलेट नहीं करती? क्यों नहीं करते? हाउ कैन वी एग्जिस्ट विद पूरा सर पूरी कॉन्फिडेंस निकल गई प्यार की बात करते हुए। Thank you. Yeah, one last question over there. Yeah. Hi Vivek, Simrita from Filmikari. I just wanted to ask what's the reason Filmikari? Yeah.
Wanted to ask reason behind this unusual trailer launch. We've already seen it with Sarabjit and we've seen it on YouTube two days back. So अब जाके आप वो कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? आप फ्री नहीं थे शायद. कहते हैं know the rules and then break them. Right, thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाए जुनूनियत की entire cast and crew के लिए. And thank you. For the photo op, मैं request करूंगा हमारे music director duo से, and of course lyricist, then अंजन साहब और तुलसी, of course नीरज पाजी हो जाए, and अरमान, जीत दादा, please आप लोग ऊपर आए. Thank you for watching our video. I hope you have liked the video and comment down below and subscribe to our channel Movie Talkies for more Bollywood updates. Thank you.